Good morning, students. Up till now, we have seen what do you understand by staffing, that is finding out right people for the right job at the right time. So, when we talk about staffing, there are three main aspects of staffing. Now, what are those aspects? Now, first of all, the staffing process starts because of two people. That is, two people are involved in the process of staffing. The very first people is the applicant, that is the person who requires a job, whereas second is the organization who have that job. So, the staffing indicates the meeting of these two people at a right time. So, these aspects of staffing includes three main tasks, that is recruitment of the right people for the filling of the job, selection of, like you have required many, you have got many applications, you have got many numbers of applicants. From that applicant, you have to select the best who suits the job. And third, if he or she requires certain sort of training or induction, then the training or induction is to be provided to the selected candidate so that he or she can perform his job perfectly. So there are three main aspects of staffing, that is recruitment, selection and training. And these aspects of staffing, these are the three other topics that we are going to study in detail. So today we are going to start with the very first aspect of staffing, that is recruitment. So what do you understand by recruitment? Recruitment is nothing but it refers to a process of finding possible candidate for a job or a function. किसी एक काम को करने के लिए आपको जो कैंडिडेट की जरूरत है उसको ढूंढना, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ रिक्रूटमेंट. जैसे सिंपल आपके स्कूल में लाइक 12th में समझो कल जाके अगर बीएस के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो योर स्कूल विल स्टार्ट सर्चिंग आउट फॉर द कैंडिडेट और फॉर द टीचर हु इज एबल टू टीच यू बीएस. तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज टर्म्ड एज रिक्रूटमेंट, टू फाइंड आउट द पॉसिबल कैंडिडेट्स हु कैन डू द जॉब और अ फंक्शन. तो ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for prospective employees and stimulating them to apply for job in an organization is called as recruitment. तो इसमें आप क्या करते हो, prospective employees. prospective का मतलब क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएस पढ़ाने के लिए क्या है कि उसको बीएस के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली ही और शी विल बी एलिजिबल टू टीच यू बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी या कोई भी सब्जेक्ट. तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज ढूंढना है, जिसको हिंदी आता हो, ठीक है, या जिसको कॉमर्स नहीं आता हो, आप उसको कॉमर्स के लिए यू कैन नॉट फिट हिम, ठीक है. तो यू हैव टू फाइंड आउट दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज और बाद में उनको स्टिम्युलेट करना कि आप आके जॉब में अप्लाई करो, जॉब के लिए अप्लाई करो. सो जब आप स्टिम्युलेट करते हो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को बताते हो कि भाई यहाँ पे जॉब अवेलेबल है एंड यू इफ यू वांट यू कैन come and give the interview. तो stimulation का मतलब क्या है, you are informing the employees, you are informing the candidates about the availability of vacancy in an organization. तो usually ये जो stimulation होता है उसका main source क्या होता है, with the help of advertisements, ठीक है. जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर कोई पेपर में आप दे देते हो या कोई पब्लिकेशंस जो प्रोफेशनल पब्लिकेशंस है वहां पे आप एडवर्टाइज करते हो आपके वैकेंसीज के बारे में, या फिर आप कहीं कैंपस इंटरव्यू के थ्रू कोई भी कैंडिडेट्स को, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हो. सो दिस आर दी वेज ऑफ स्टिम्युलेटिंग. आप एक स्टिम्युलेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई एक वैकेंसी अवेलेबल है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दी सेम. सो रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट दी पॉसिबल कैंडिडेट्स, prospective candidates who can perform the job or function that is available in an organization. So there are two sources of recruitment. अगर आपको बंदे चाहिए तो आप वो कहाँ से ला सकते हो, तो there are two sources of recruitment. पहला सोर्स होता है इंटरनल एंड दूसरा सोर्स होता है एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओनली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, जैसे बीएस और अकाउंट्स आपके दो सब्जेक्ट है और अकाउंट्स के लिए सपोज कोई अवेलेबल नहीं है या बीएस के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, देन मुझे को बीएस के साथ साथ अकाउंट्स का भी दे रहे हैं, या लाइक जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट इन अदर सेंस. तो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है. सिमिलरली एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जब आप बाहर के लोगों को आपके स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में बुलाते हो काम करने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल सोर्स. So today we are going to study only about internal source of recruitment. So this recruitment, it is the first step in planning process. So internal source का मतलब क्या है, inviting the applications from personnel working within the organization or shifting existing employee, ठीक है, sorry,
इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है, यू आर इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम पर्सनल हु आर वर्किंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं के पास से, उन्हीं के पास से आप एप्लीकेशंस मंगवा रहे हो. सो दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ देयर आर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. पहला होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर, या दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आप शिफ्ट कर रहे हो, कहां से, तो इधर एक जॉब से दूसरे जॉब के लिए, या फिर एक शिफ्ट यानी कोई डे शिफ्ट से आप उसको नाइट शिफ्ट में डाल रहे हो, या फिर एक डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप उसको एचआर डिपार्टमेंट में डाल रहे हो, या एचआर डिपार्टमेंट से आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल रहे हो. सो व्हेन यू आर शिफ्टिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय within organization only, when you are shifting an existing employee either from one job to another, one shift to another, or one department to another, it is termed as transfer. तो usually this transfer का मतलब क्या है, there is a horizontal movement of employee. horizontal का मतलब उसी लाइन में आप एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक जॉब से दूसरे जॉब, सेम लाइन, ठीक है. तो दैट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये ट्रांसफर से क्या हो सकता है कि इट मे और इट मे नॉट चेंज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर ड्यूटीज, योर स्टेटस और योर सैलरीज, बिकॉज आप सेम लाइन में काम करने वाले हो, ठीक है. एंड देन अगेन ये एक एज अ ट्रेनिंग टूल भी आप यूज कर सकते हो ट्रांसफर को, सो दैट यू आर एबल टू ट्रेन दी पीपल. जो भी डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है, जब आप ट्रांसफर करते हो तो आप क्या करते हो, इट इज लाइक अ ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय, कि आपको ये काम आ गया, अभी आप ये काम भी सीख लो. तो इट इज अ वे ऑफ ट्रेनिंग एन एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके वजह से क्या होता है कि कहीं पे भी ट्रेनिंग का एक मेन एडवांटेज क्या है कि कहीं पे भी अगर कोई ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट है तो आप उसमें से निकाल के उसको, जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयज अवेलेबल है या अंडर स्टाफ है, आप उसको उस डिपार्टमेंट में डाल सकते हो कैपेबल पीपल को, ताकि आप ऑप्टिमल रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज मेंटेन कर सको. सो दैट इज अ ट्रांसफर. दूसरा तरीका जो होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, दैट इज अ प्रमोशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? सो फिलिंग हायर पोजीशंस by promoting an employee from lower job. तो यहाँ पे प्रमोशन का मतलब, सी देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन. ट्रांसफर क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, द लाइन इज सेम, सो इट इज अ वर्टिकल. जबकि प्रमोशन में क्या हो रहा है कि आप सुपरवाइजर थे, सुपरवाइजर से आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, आप मैनेजर बन रहे हो, ठीक है. सो हायर पोजीशंस को आप फील कर रहे हो बाय प्रमोटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम दी लोअर जॉब. सो इट इज अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. प्रमोशंस आर ऑलवेज वर्टिकल. वर्टिकल मतलब ऊपर ऊपर आप चढ़ते जा रहे हो, जबकि हॉरिजॉन्टल मतलब उसी लाइन में आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो. सो दैट इज अ प्रमोशन, दैट इज फिलिंग दी हायर पोजीशंस बाय प्रमोटिंग दी एम्प्लॉयज फ्रॉम दी लोअर जॉब. नाउ सिंस यू आर वर्टिकल मूवमेंट आप कर रहे हो, तो ऑलवेज देयर विल बी अ चेंज इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिज ड्यूटीज, उसके स्टेटस में भी चेंज आएगा और उसके सैलरी में भी चेंज आएगा. अब ये प्रमोशन की वजह से क्या होगा, इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड इट विल प्रोवाइड हिम द जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है. सो दैट इज दिस आर द टू सोर्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. So now let us see what are the advantages and disadvantages of internal source of recruitment. I am teaching you today only internal source, external source I will cover tomorrow. So the advantage of internal sources are, सबसे पहले तो क्या होगा, it will motivate the employees for better performance. जैसे अगर कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी हायर पोजीशन को अगर आपको फिल करना है, तो आप जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही जो लोग हैं उन्हीं को प्रमोट करके आप ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी आपकी वैकेंसीज को फिल करो. तो इससे क्या होगा, इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉय कि हम हमारे परफॉर्मेंस को अगर इंप्रूव करें, अगर हम हमारे नॉलेज या स्किल को अपग्रेड करें, तो मेरे भी चांस है कि मैं ऊपर के पोजीशन में या हायर पोजीशन में जा सकता हूँ. सो इट इज गोइंग टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस. अगेन सिलेक्शन सिंपल सिलेक्शन है, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या है, आपको बाहर ऑलरेडी जो आपके पास लोग अवेलेबल है उन्हीं में से जो आपको लगता है कैपेबल है, उन्हीं में से आपको उनको सिलेक्ट करना है. आपको कोई स्क्रीनिंग या टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करोगे जो आपको लगता है कि उसके पास ये अलग दूसरा काम करने के लिए ये कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो इजिली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. सो दी सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी मच सिंपल. देन टूल्स ऑफ ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि इट इज लाइक अ ट्रेनिंग टूल टू ट्रेन पीपल फॉर डिफरेंट जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगेन ऑप्टिमल स्टाफ इज ऑल्सो पॉसिबल.
जहाँ पे ट्रांसफर या प्रमोशन से क्या होता है कि जो भी कैपेबल स्टाफ है, ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसको आप जहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वहां पे आप उसको इजीली कैपेबल स्टाफ को शिफ्ट कर सकते हो. सो इसके वजह से क्या होगा, किसी भी तरह का टर्मिनेशन या रिमूवल ऑफ capable staff will be avoided and it can make sure कि optimal staff is available in each and every department and saves cost and time. Of course, filling position it will reduce the cost of recruitment and selection because आप organization के within ही positions fill कर रहे हो. जो भी आपके एम्प्लॉयज है, जिनको भी आप ट्रांसफर या प्रमोट कर रहे हो, वो ऑलरेडी फेमिलियर है विद द ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स उनके लिए कंडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या वहां के लोगों के बारे में या वहां के प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी उनको सारी चीजें पता है. सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. हाउएवर इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. तो डिसएडवांटेज सबसे पहला क्या होगा, नो फ्रेश एम्प्लॉय टैलेंट, दैट इज यहाँ पे कोई भी स्कोप अवेलेबल नहीं है. अगर ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, सो फ्रेश टैलेंट के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आने का कोई भी चांस नहीं होता. बिकॉज हो सकता है कि बाहर कोई लोग ऐसे और अवेलेबल है जिनके पास आपके करंटली जो एम्प्लॉयज अवेलेबल है उनसे ज्यादा स्किल या उनसे ज्यादा नॉलेज अवेलेबल हो, लेकिन आप इंटरनली या प्रमोशन या ट्रांसफर करके जगह फिल कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, बाहर के लोगों को कभी भी आप मौका नहीं दे पाओगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आए और अपना जो भी स्किल्स या टैलेंट है वो बताए. सो देयर इज नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट. अगेन कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर यूजिंग you are restricting the competition from the qualified candidate who are available in the market or who are available outside. So external competition भी नहीं होगा. It will reduce the productivity. Of course, अगर आप बार बार किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते रहोगे या प्रमोट करते रहोगे सीनियोरिटी के बेस पे या टाइम के बेस पे, तो इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के बिहेवियर में, उनके प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आ जाएगा. अरे ये लोग तो बार बार मुझे ट्रांसफर ही करते